Good morning class. Today we will learn two topic, that is kidney stone. Kidney stone, it is also termed as nephrolithiasis, urolithiasis and renal calculi. Urolithiasis, it refers to the stone that is also called calculi in urinary tract, and the stone are formed in urinary tract when the concentration of such substance like calcium oxalate, calcium phosphate and uric acid increase. So overall urolithiasis, it is also called kidney stone or renal stone, and it arises in urinary tract, and the reasons for arising this type of stone which is formed in the urinary tract that are increased saturation, that is increased concentration of the substance, for example calcium oxalate, calcium phosphate and uric acid. Definition: kidney stone, it is also called renal calculi. Nephrolithiasis or urolithiasis are the hard deposit made of minerals and salt that forms inside the kidney. So overall it is the stone information inside the kidney. There are different types of kidney stone. So first one is calcium stone, second one is struvite stone, third one is uric acid stone, fourth one is cystine stone. So there are four types of renal stone. First one is calcium stone. Most kidney stone are calcium stone. They usually form in form of calcium oxalate. When the stone is formed of calcium oxalate, it is called calcium stone, and the oxalate is the substance which is made daily by the liver and absorbed from the diet. Certain fruit and vegetables as well as nuts, chocolate which have high oxalate content, they cause calcium stone. Next one is struvite stone. Struvite it is a phosphate minerals, and the stone form in the response of urinary tract infection. If already some person have urinary tract infection, then it will be easy to get struvite stone. अगर पहले से ही किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो उसको बहुत ही ईजिली स्ट्रूवाइट जो स्टोन है होने के चांसेस हैं. एंड दीज स्टोन कैन ग्रो क्विकली एंड बिकम क्वाइट लार्ज. ये जो स्टोन्स हैं बहुत ही क्विकली यानी कि बहुत ही जल्दी ग्रो करते हैं एंड इट बिकम्स क्वाइट लार्ज. और ये अगर हम इनका साइज़ देखें तो ये थोड़े से बड़े होते हैं, साइज़ में लार्ज होते हैं. समटाइम्स विथ फ्यू सिम्टम्स और लिटिल वार्निंग. समटाइम्स जो इसमें सिम्टम्स होते हैं बहुत ही हमको पेशेंट में कम देखने को मिलेगा विद द लिटिल वार्निंग साइन. नेक्स्ट वन इज यूरिक एसिड स्टोन. It can form in peoples who lost too much fluid because of the chronic diarrhea or malabsorption, or those who eat a high protein diet, and those with the diabetic or metabolic syndrome. So here what is the metabolic syndrome? Metabolic syndrome क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम में हम ये बोल सकते हैं कि पर्सन का ब्लड जो प्रेशर है हाई है, शुगर लेवल हाई है, जो कि क्या करता है मैक्सिमम हार्ट को और जो हमारे जो वाइटल्स हैं उनको अफेक्ट करता है. सो यूरिक एसिड स्टोन फॉर्मेशन ऐसे पर्सन में होता है जिनमें क्रॉनिक डायरिया या किसी भी तरह का माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, प्रॉपरली जो उनका मेटाबॉलिज्म है वो नहीं हो पा रहा है, डिस्टर्ब हो गया है, जिसकी वजह से यूरिक का जो एसिड का जो लेवल है वो उनमें इंक्रीज हो जाता है, एंड दैट कॉज यूरिक एसिड स्टोन. नेक्स्ट वन इज सिस्टीन स्टोन. दिस इज फॉर्म इन द पीपल विद द हेरिडिटरी डिसऑर्डर दैट इज कॉल्ड सिस्टिनूरिया, दैट कॉज द किडनी टू एक्सक्रीट टू मच ऑफ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड. सिस्टीन जो यहाँ पे है, सिस्टीन का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टीन में यहाँ पे हमको एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी. सिस्टीन ये जो है, इसमें जो स्टोन फॉर्मेशन होता है, इसमें क्या होता है कि ऑलरेडी यहाँ पे
पर्सन को जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर होने की वजह से ये हो रहा है। अगर हम अदर जो स्टोन फॉर्मेशन हो रहे हैं अगर हम उससे कंपेयर करते हैं तो बाकी जो है उसमें क्या है, एक्वायर्ड कॉसेस है। एक्वायर्ड कॉसेस है मतलब वो जेनेटिक नहीं है लेकिन ये जेनेटिक है। सो it is mainly caused by a hereditary or genetic disorder which is called cystinuria and which cause kidney to excrete too much of a specific amino acid। सिस्टीन जो होता है वो एक स्पेसिफिक टाइप का अमाइनो एसिड होता है और इस पर्टिकुलर जो डिसीज़ है जो सिस्टीनूरिया है जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें क्या होने लगता है, किडनी बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिस्टीन अमाइनो एसिड एक्सक्रीट करने लगती है जो कि क्या करता है, आगे चल के स्टोन का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट वन इज रिस्क फैक्टर। देयर आर सम रिस्क फैक्टर टू विच कैन प्रेसिपिटेट और ट्राइगर द कंडीशन that develops in the kidney stone। So first one is if person having any type of family history of renal stone, any type of previous history of renal stone। next one is dehydration। अगर पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो जाएगा तो क्या होगा, उसकी बॉडी में जितने भी जो मिनरल्स हैं, जो भी सब्सटेंस हैं वो बहुत ज़्यादा सुपर सैचुरेटेड हो जाएंगे, यानी कि यूरिन में उनका जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा सॉल्यूट्स का जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाएगा एंड दैट कॉज फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन द किडनी। नेक्स्ट वन इज ओबेसिटी। High body mass index, large waist size and weight gain have been also linked to increased risk of kidney stone। ओबेसिटी वाले जो पर्सन होते हैं उनको किडनी स्टोन होने के चांसेस क्यों होते हैं, क्योंकि जिनको ओबेसिटी है ऑलरेडी दे हैव मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी, ऑलरेडी उनका जो मेटाबॉलिक जो सिस्टम है वो बिल्कुल सही नहीं है, माल एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, और अगर मेटाबॉलिज्म बॉडी में प्रॉपर नहीं होगा तो जितने भी जो सब्सटेंस है, जितने भी मिनरल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं होंगी और वो एक्यूमुलेट होना शुरू होंगी एंड दैट कॉज फॉर्मेशन ऑफ स्टोन। नेक्स्ट वन इज सर्टेन डाइट्स। ईटिंग अ डाइट दैट इज हाई इन प्रोटीन, सॉल्ट एंड शुगर में ऑल्सो इंक्रीज द चांस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टोन। Another medical condition like renal tubular acidosis, so it is the accumulation of acid in the body due to the kidney failure to appropriately acidify the urine। renal tubular acidosis का मतलब क्या होता है, it is a type of disease in which the acid is accumulated inside the body due to kidney failure। रीनल फंक्शन डिमिनिश्ड होने की वजह से, किडनी का फंक्शन फेल होने की वजह से क्या होता है, बॉडी में एसिड का एक्यूमुलेशन होने लगता है एंड दैट कॉज फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन द किडनी। अनदर मेडिकल कंडीशन लाइक सिस्टीनूरिया, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, इट इज़ अ जेनेटिक डिसीज इन विच अमाइनो एसिड दैट इज कॉल्ड सिस्टीन इट इज ओवर एक्सक्रीटेड इन द बॉडी। डाइजेस्टिव डिसीज एंड सर्जरी। डाइजेस्टिव डिसीज में हम जैसे कि देख सकते हैं डाइवर्टिकुलाइटिस, एनी टाइप ऑफ इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज इन विच देयर इज इन्फ्लामेशन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, inflammatory bowel disease and chronic diarrhea can also cause changes in digestive process and that affect the absorption of calcium and water that increase the amount of stone forming substance in urine। आपको अभी मैंने ये चीज़ पहले ही बता दी है कि बॉडी में अगर किसी भी तरह का मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज़ है या माल एब्जॉर्प्शन है या बॉडी में प्रॉपर जो मिनरल्स हैं, जो भी सब्सटेंस अगर प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं हो रहे हैं, फिर वो प्रोटीन हो सकता है या कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, तो वो क्या करता है, स्टोन फॉर्मेशन करता है। सो डाइजेस्टिव डिसीज़ जो है और जो भी डाइजेस्टिव सर्जरी होती है, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड जितनी भी सर्जरी होती है, मैक्सिमम ये जो पेशेंट होते हैं हायर रिस्क पे होते हैं, उनको किडनी स्टोन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। Certain supplements and medication like vitamin C, dietary supplements, laxatives, calcium-based antacids, certain medication that used to treat the migration or depression can also increase the risk of kidney stone by diminish the metabolic function।
नेक्स्ट वन इज यूरिनरी ट्रैक्ट डिफेक्ट। अभी मैंने आपको जो टाइप से बताया यूरिक एसिड स्टोन मेनली उन पर्सन में होता है जिनको ऑलरेडी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो ऐसे पेशेंट में यूरिक एसिड स्टोन फॉर्मेशन होने के चांसेस बहुत ही होते हैं। अ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इन यूरिनरी ट्रैक्ट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ पी एंड क्रिएट एन एरिया वेयर इट कलेक्ट इन अ टीनी पूल, एंड व्हेन पी स्टॉप flowing, crystal forming substance may settle together and form the stone. Next one is metabolic disorder. नेक्स्ट इज कॉसेस। कॉसेस भी सेम लाइक रिस्क फैक्टर के जैसा ही है, और जो टाइप्स हमने पढ़ा जैसे कि फॉर एग्जांपल कैल्शियम किडनी स्टोन के क्या क्या कॉसेस हैं, तो इसमें सिंपल सा अगर हम डाइटरी सप्लीमेंट्स में एक्स्ट्रा कैल्शियम ले रहे हैं या फिर कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम का डिपोजिशन होने लगता है। कॉसेस ऑफ स्टोमाइड किडनी स्टोन, फर्स्ट वन इज डार्क ड्रिंक सिग्निफिकेंटली लेस वाटर। अगर हम बहुत कम पानी पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हैं, ऑलरेडी सफ़र फ्रॉम गॉड डिसीज। गॉड डिसीज इट इज़ अ आर्थराइटिस विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर पेन, रेडनेस एंड टेंडरनेस इन जॉइंट and already suffer from certain genetic disorder, so it also cause kidney stone or nephrolithiasis. Next one is causes of cystine kidney stone. It is a hereditary disorder which lead to excessive excretion of certain type of amino acid, that is cystine, and which is called cystinuria, that result in cystine stone formation. Next is pathophysiology. Pathophysiology मैंने बहुत अलग अलग जो थ्योरीज है उनके अकॉर्डिंग अलग अलग पैथोफिजियोलॉजी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पैथोफिजियोलॉजी है, देन दिस इज़ द ब्लॉक्ड लिम्फेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग पैथोफिजियोलॉजी है, वस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग अलग पैथोफिजियोलॉजी है, फ्री पार्टिकल्स थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग अलग पैथोफिजियोलॉजी है, देन रैंडल प्लैक हाइपोथेसिस है, इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट पैथोफिजियोलॉजी है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पैथोफिजियोलॉजी से मैंने यहाँ पे बहुत सारा लिखा है, लेकिन मैक्सिमम जो पैथोफिजियोलॉजी है ऑलमोस्ट सभी सेम ही है। तो मैं आपको सिर्फ इसमें एक पैथोफिजियोलॉजी बताऊंगी जो कि मुझे सबसे ज़्यादा इजी लग रहा है, और थोड़ा सा ये डिटेल में भी है, आपको ईजिली समझ में आएगा, है ना। तो इसके अलावा आप लोग जो अदर पैथोफिजियोलॉजी है उसको भी लिख सकते हैं। सो द पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, calcium stone formation begins with the formation of calcium phosphate deposit on the external urothelial surface of the papilla. अगर हम जितने भी हमने टाइप्स देखा, तो सबसे पहले अगर हम पैथोफिजियोलॉजी में अगर सबसे लास्ट जो टाइप हमने देखा सिस्टीन स्टोन फॉर्मेशन, तो उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या हो सकती है। सबसे पहले पर्सन को जेनेटिक डिसऑर्डर है, ऑलरेडी उसकी फैमिली हिस्ट्री में है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसके जीन्स डिफेक्टिव है जिसकी वजह से सिस्टीन जो अमाइनो एसिड है वो एक्सेस अमाउंट में एक्सक्रीट हो रहा है, एंड दैट लीड्स टू स्टोन फॉर्मेशन इन द किडनी। उसकी पैथोफिजियोलॉजी सिंपल है। नेक्स्ट जो हमने देखा कि इस यूरिक एसिड फॉर्मेशन, यूरिक एसिड स्टोन फॉर्मेशन, उसमें क्या होता है, पर्सन ऑलरेडी उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, किसी भी तरह का यूरिनरी ट्रैक जो सिस्टम है उसमें एबनॉर्मेलिटी है, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है, जिसकी वजह से जो यूरिन है उसके जो पासेज हैं वो ब्लॉक हो रहे हैं, एंड दैट कॉज एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इनसाइड द किडनी एंड दैट लीड्स टू रीनल कैल्कुलाई। तो ये दो रीजंस हो गए। अब नेक्स्ट जो हमको देखना है दैट इज formation of calcium stone. Calcium stone formation, it begins with the formation of calcium phosphate with deposit in the external urothelial surface of papilla. जब किडनी का स्ट्रक्चर जब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था तो उसमें एक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड रीनल पैपिला। तो यहाँ पे जो कैल्शियम जो फॉस्फेट के डिपॉजिट्स हैं वो कैल्शियम जो फॉस्फेट है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट होते हैं एट द सरफेस ऑफ रीनल पैपिला एट where the external urothelial surface is present. Hence इस प्रकार कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन टिपिकली हैव अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। तो अगर हम कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन देखें तो वो माइनर कंपोनेंट में पहले डिपॉजिट होना स्टार्ट होते हैं, दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट जब
Next, if small particles were not anchored to these plaque, they would simply wash into the urine. ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, अगर ये शिप नहीं किए जाते हैं आगे प्लेक के आगे, तो ये क्या होते हैं, ईजिली यूरिन के थ्रू ये पास आउट हो जाते हैं एंड एक्सक्रीट हो जाते हैं बॉडी से. स्टोन फॉर्मेशन रिक्वायर दैट क्रिस्टलॉइड बी प्रेजेंट इन सुपर सैचुरेटिंग कंसंट्रेशन. कभी भी किडनी में स्टोन का फॉर्मेशन होने के लिए जो भी कंसंट्रेशन है, जो भी पर्टिकुलर जो सॉल्यूट्स है जिसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है, उसका सैचुरेशन ज़्यादा होना चाहिए. जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है, तो कैल्शियम फॉस्फेट जो है उसका अमाउंट सॉल्यूशन जो यूरिन है उसमें क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए. उसका जो सुपर सैचुरेटेड हो जाता है, सुपर सैचुरेटेड का मतलब जो कैल्शियम फॉस्फेट है उसका जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाएगा. अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज हायर इन एनी सॉल्यूशन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कैल्शियम फॉस्फेट है उसका सैचुरेशन जो है वो इंक्रीज़ हो गया है. तो किसी भी तरह की स्टोन फॉर्मेशन होने के लिए किसी भी पर्टिकुलर जो क्रिस्टलॉइड है, कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस है, उसका सैचुरेशन कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए. बट इवन विद दिस कंडीशन इज मेट, स्टोन फॉर्मेशन में नॉट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ एडिक्वेट कंसंट्रेशन ऑफ इनिबिटर. या कभी कभी क्या होता है कि कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, सुपर सैचुरेटेड भी हो जाते हैं वो पर्टिकुलर सब्सटेंस, लेकिन उसके बाद भी किडनी में स्टोन फॉर्मेशन नहीं होता है, इंक्लूडिंग सिट्रेट, मैग्नीशियम, मैक्रोमोलिक्यूल्स. जबकि जो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंसंट्रेट रहते हैं जो कि उसको बढ़ावा दे रहे हैं, फिर भी स्टोन फॉर्मेशन नहीं होता है. स्टोन फॉर्मेशन कब होता है? Such on the other hands, like uric acid, alkaline urine pH act as a promoters to facilitate the stone formation as a given level of super saturation. इसके पहले मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो क्या होंगे, रीनल पैपिला के एक्सटर्नल सरफेस पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होते हैं. जैसे जैसे एक्यूमुलेट होते हैं, अगर वो स्मॉल पार्टिकल्स हैं तो यूरिन के थ्रू वो पास आउट हो जाते हैं, और अगर वो नहीं होते तो वहाँ पे वो सुपर सैचुरेटेड होने लगते हैं, यानी कि उनका सैचुरेशन कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है. लेकिन फिर भी वहाँ पे स्टोन का फॉर्मेशन क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन इनिबिटर्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल सिट्रेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ एडिक्वेट कंसंट्रेशन ऑफ इनिबिटर्स लाइक सिट्रेट, मैग्नीशियम एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स. ये जो तीन होते हैं ये किसी भी तरह के स्टोन फॉर्मेशन को रोकते हैं. इस रीज़न के साथ भी कि वहाँ पे उस पर्टिकुलर जो क्रिस्टलॉइड है उसका सैचुरेशन ज़्यादा हो गया, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो ज़्यादा किसी भी क्रिस्टलॉइड का सैचुरेशन ज़्यादा हो रहा है तो वो प्रमोट करते हैं रीनल स्टोन फॉर्मेशन को. फॉर एग्जाम्पल यूरिक एसिड हो गया, alkaline urine pH, and that promote the stone formation at a given level of super saturation. So urinary saturation approximate ratio of concentration product to its solubility in the urine. So the value greater than 1 crystal formation is favored. तो अगर हम ओवरऑल देखें तो क्रिस्टल फॉर्मेशन जो स्टोन का फॉर्मेशन है वो कब होता है, जब जो सैचुरेशन की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा हो गई है, तो वो उसके फेवर में आ जाता है कि जो यूरिनरी ट्रैक में जो स्टोन है उसका फॉर्मेशन होगा. और अगर वैल्यू का 1 से कम है तो जितने भी स्टोन फॉर्मेशन वाले जो फेवर वाले जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि अभी हमने देखा यूरिक एसिड एंड एल्कलाइन यूरिन पीएच, ये उसको सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन फिर भी यूरिनरी ट्रैक में स्टोन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता. तो ओवरऑल यही है कि किडनी में किसी भी सब्सटेंस का अगर हमारी बॉडी में कोई भी सब्सटेंस अगर सुपर सैचुरेटेड हो रही है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, सैचुरेशन बढ़ रहा है, तो बॉडी में दोनों फैक्टर्स वर्क करते हैं. एक फैक्टर्स है जो उसको इनिबिट करता है स्टोन फॉर्मेशन को, और जो दूसरा फैक्टर्स है वो उसको प्रमोट करता है. तो डिपेंड करता है कि कौन सा फैक्टर वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव है. So this is the other pathophysiology of renal calculi or renal stone. Next we will talk about the clinical features. Clinical features, if stone is present in the renal pelvis, so the clinical sign and symptoms are, first one is intense
and deep pain which is arise in the costovertebral region. Costovertebral region, it is the region which is located on our back side at the bottom of the rib at the location of 12th rib. जहाँ पे हमारी 12th rib है वहाँ पे जो बैक में जो बॉटम का जो हमारा साइड है at the region of 12th rib, वहाँ पे पेशेंट को पेन फील होगा. हिमेचूरिया एंड पायूरिया. Pyuria, it is a condition of urine in which urine containing pus or WBC. Then pain which radiates anteriorly and downward toward the bladder in the female and toward testis in the male. पेन है जो कि पेशेंट को अगर हम फीमेल में देखें तो ब्लैडर के जो आसपास के जो एरियाज है वहाँ पे पेन होगा एंड टुवार्ड्स टेस्टिस इन द मेल पर्सन. नेक्स्ट वन इज एक्यूट पेन, nausea, vomiting and abdominal discomfort as well as diarrhea also. Next clinical feature, that is urethral coliac stone that is present in the ureter, and the clinical and sign symptoms, that is acute excruating that is very deeply or strongly painful condition, that is coliac that is pain in the coliac region due to intestinal obstruction which radiates to thigh to the genitalia, जो कि थाई से होते हुए जेनाइटेलिया तक पूरा वो पेन है वो एरिया कवर कर लेता है. पेशेंट को डीप और एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा ही जो पेन होता है वो बहुत ही ज़्यादा डीप होता है और बहुत ही पेनफुल होता है. फ्रीक्वेंट डिज़ायर टू वॉइस, इसके लिए एक टर्म है दैट इज़ कॉल्ड अर्जेंसी, यानी कि पेशेंट को फील होगा कि पेशेंट को वॉइड करना है यूरिन, लेकिन बहुत ही लिटिल अमाउंट में होगा. इट अराइज इन कंडीशन ऑफ यूरिक एसिड स्टोन, क्योंकि यूरिक एसिड स्टोन वाले जो पेशेंट होते हैं मैक्सिमम उनको यूटीआई का प्रॉब्लम होता है. स्टोन विच इज़ प्रेजेंट इन द ब्लैडर, सो इरिटेशन विच इज़ एसोसिएटेड विद द यूटीआई. हिमेचूरिया इज ऑल्सो प्रेजेंट, यूरिनरी रिटेंशन एंड पॉसिबल यूरोसेप्सिस इफ इन्फेक्शन इज प्रेजेंट विद द स्टोन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट. नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर, दैट इज पेन इन द बैक साइड. नेक्स्ट डायग्नोसिस, तो फर्स्ट वन वी विल टेक द हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन. सबसे पहले हम हिस्ट्री लेंगे पेशेंट से कि पेशेंट को किसी भी तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, पेशेंट को यूटीआई है या डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, ये सारी चीज़ें हम पहले फाइंड आउट करेंगे. देन फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे. फिजिकल एग्जामिनेशन टू फाइंड आउट द साइन एंड सिम्टम ऑफ द पेशेंट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ stone. Another test, that is blood test, CBC, hemoglobin test to detect whether the patient is anemic or not. RBC, that is usually normal in case of kidney stone. WBC, it is increased in case of urinary tract infection. Another one is biochemical survey, that is elevated level of magnesium, calcium, uric acid, phosphate, protein, electrolytes. ये जो लेवल्स है ये हम चेक करेंगे. सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल जो कि ऑलरेडी बढ़ा हुआ रहेगा पेशेंट का. सीरम एंड यूरिन बर्न, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन लेवल, दैट ऑल्सो हाई इन द सीरम, यानी कि ब्लड में इनका लेवल बढ़ा होगा, दैट इज एंड लो इन द यूरिन. सीरम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट लेवल ऑल्सो इंक्रीज. यहाँ पे क्लोराइड का लेवल क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा, एंड डिक्रीज लेवल ऑफ बाइकार्बोनेट, दैट सजेस्ट द डेवलपमेंट ऑफ रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, दैट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ एसिड इन द रीनल सिस्टम. नेक्स्ट वन इज यूरिन एनालिसिस टू आइडेंटिफाई द कलर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूरिन. Color may be yellow, dark brown, bloody due to hematuria and commonly so RBC, WBC and crystal cast, that is the dead cells of that particular cast, particular part, that is RBC. अगर RBC cast हमको मिल रहा है, that is the dead part of RBC, WBC, crystals, minerals, bacteria, pus cells, and pH may also less than 5 or higher than 7.5 in case of different type of stone, for example phosphate steroid, calcium phosphate stone. Then urine examination, 24-hour urine examination.
to identify the creatinine, uric acid, calcium, phosphate, oxalate और क्रिस्टीन लेवल, इस लेवल को हम आइडेंटिफाई करते हैं whether it is elevated or not. Next one is urine culture which may reveal the urinary tract infection. Another one is parathyroid hormone which is increased if kidney failure is also present because this hormone stimulate the reabsorption of calcium from the bone. पैराथायरॉयड हार्मोन्स क्या करता है, कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है जिसकी वजह से कैल्शियम का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है एंड दैट लीड्स टू कैल्शियम स्टोन फॉर्मेशन. Next one is KUB X-ray, that is kidney, ureter and bladder X-ray to show the presence of calculi or anatomical changes in the area of kidney or along the course of the ureter, as well as also assess the abdominal area for the cause of abdominal pain and discomfort. Next one is CT scan to identify the calculi and other masses which is present inside the renal system. Next one is IVP, that is intravenous pyelogram. Intravenous pyelogram, it provides the rapid confirmation of renal stone and a cause of abdominal pain. इसमें हम क्या करते हैं, हम आयोडीन कंटेनिंग जो कॉन्ट्रास्ट मटेरियल होता है दैट इज कॉल्ड डाइंग एजेंट, इसमें हम इंजेक्टेड करते हैं थ्रू द वेन विच इज इन द आर्म. हम जो हैंड के जो हैंड्स में जो वेन है, हमारे आर्म्स में जो वेन है, उनके थ्रू हम एक डाइंग एजेंट है उसको हम इंसर्ट करते हैं. जो मोस्टली जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ आयोडीन कंटेनिंग कॉन्ट्रास्ट मटेरियल विच इज़ इंजेक्टेड थ्रू द वेन इन द आर्म्स एंड इट कलेक्ट्स, ये जो कलेक्ट किया जाता है इन द किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, ये सभी जगह से कलेक्ट किया जाता है एंड इट डिफाइंस द अपीयरेंस ऑफ दीज ऑल पार्ट्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम इन द एक्सरे इमेजेस. और ये जो डाइंग एजेंट है ये पूरे यूरिनरी सिस्टम में को कवर करते हुए कलेक्ट किया जाता है और ये जब हम एक्सरे लेते हैं तो ये हमको एक प्रॉपर जो एक इमेज है वो प्रोवाइड करता है, डिटेल इमेज प्रोवाइड करता है. Next one is cysto-ureteroscopy, that is the direct visualization of bladder and ureter that reveals the stone, location of stone and if there is any obstruction present inside the urinary tract. Next one is ultrasound of the kidney to determine the obstructive changes, location of stone without risk of failure induced by the contrast medium. So this is the diagnosis. नेक्स्ट कल हम लोग कॉम्प्लिकेशन पढ़ेंगे. आज हमने क्या क्या चीज़ें देखी है. सबसे फर्स्ट हमने टाइप्स देखा, टाइप्स 4 टाइप्स होते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ कैल्शियम स्टोन फॉर्मेशन, नेक्स्ट वन इज़ स्टेरॉइड एसिड फॉर्मेशन, स्टेरॉइड स्टोन फॉर्मेशन एंड थर्ड वन इज़ यूरिक एसिड फॉर्मेशन एंड फोर्थ वन इज़ सिस्टीन स्टोन फॉर्मेशन.